Hello and very warm welcome to all the students and learners, and today we are going to start the next part of the story, the summer of the beautiful white horse. In the previous part you have already studied that both the boys enjoyed the horse riding, and now it is dawning, the sun is rising, and everybody has just woke up and they want to return their home. But the difficulty is that they can't keep the horse with them. So Murad keeps that horse in the vineyard as a safeguard, because if they take the horse with them to their home, there will be so many questions regarding the white horse. And apart from these things, the real owner of the white horse has already come to their home, who is in conversation with their uncle Khosrow. And according to his habit, Mr. Khosrow uh, says his pet phrase, there is no harm and pay no attention to it. And his phrasing disappoints the real owner of the horse, whose name is John Byro. So, what happens next? We will study today. So, let us start the story. My left leg pains me, the farmer said. Pay no attention to it, my uncle Khosrow roared. That horse cost me $60, the farmer said. I spit on money, my uncle Khosrow said. He got up and stalked out of the house, slamming the screen door. My mother explained. अब ये जो कन्वर्सेशन था उनके बीच में चलता रहा. उसने कहा कि मेरी टांगें दर्द करती हैं. उसने कहा अपनी आदत के अकॉर्डिंग हर बात के जवाब में ध्यान मत दो. उसने कहा कि घोड़ा मुझे $60 का कीमत का था वो. तो उसने कहा मैं थूकता हूँ ऐसे पैसे पर. और खोसरो भी ये कहकर तेज़ कदमों के साथ घर से बाहर निकल गया और जो स्क्रीन डोर था उसने उसको तेज़ी के साथ स्लैम किया. माई मदर एक्सप्लेन. He has a gentle heart, she said. It is very simply that he is homesick and such a large man. The farmer went away and I ran over to my cousin Murad's house. He was sitting under a peach tree, trying to repair the hurt wing of a young robin which could not fly. He was talking to the bird. अब क्या होता है कि मेरी मदर ने उसको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि भाई वो एक व्यक्ति ऐसा है जिसको होम सिकनेस है और उसकी जो कद काठी है कुछ ज़्यादा ही विशाल है. खैर फार्मर चला गया. मैं भागता हुआ अपने जो कज़न था मुराद उसके घर पर गया. मैंने देखा कि वो पीच ट्री के नीचे बैठा हुआ है और एक यंग रॉबिन है. रॉबिन इट्स अ काइंड ऑफ अ बर्ड. तो वो उड़ नहीं पा रहा था, तो उसका जो पंख था वो उसको शायद ठीक कर रहा था. तो मैंने उससे बात की बर्ड के बारे में. सॉरी, वो बर्ड से बात कर रहा था. What is it? The farmer John Byro, I said. He visited our house. He wants his horse. You have had it a month. I want you to promise not to take it back until I learn to ride. तो उसको बताता है कि जॉन बायरो यानी कि जो घोड़े का असली मालिक है वो हमारे घर पर आया था और वो अपना घोड़ा वापस चाहता है. तुम्हारे पास 1 महीने से उसका घोड़ा है. अब तुम मुझे वादा करो कि जब तक मैं हॉर्स राइडिंग सीख नहीं जाऊंगा तब तक घोड़ा वापस नहीं करोगे. इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, माई कज़न मुराद सेड. वी वुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सेड. माई कज़न मुराद लीप टू हिज फीट. व्हाट, आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ द Geroglian family to steal? The horse must go back to its true owner. When? In 6 months at the least, he said. Now you can notice the irony in the chapter from this conversation. On the one hand, they are famous or they are known for their integrity, their honesty. But here, their personal desires are standing in their way of their duty. As a responsible tribe member,
they shouldn't have done this task, but they were uh, not in the mood of doing this thing, because they were launching uh, in a very fierce manner, because they were crazy after horses. So this was their first and last chance to have the ride of a horse. So um, Aram did not want to let it go from his hands, क्योंकि जो मुराद था वो हॉर्स राइडिंग सीख चुका था. नाउ इट वॉज टर्न ऑफ आराम. अब आराम ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था कि घोड़ा तो चोरी हो गया है, तो अब जब चोरी हो गया है तो क्यों ना इसका पूरा फ़ायदा ही उठा लिया जाए. तो अगर कल को इसको रिटर्न ही करना पड़ा, इन दैट केस आई वुड लर्न हॉर्स राइडिंग. अगर इसको रिटर्न करना पड़ा तो कम से कम हॉर्स राइडिंग तो मैं सीख ही जाऊँगा. इसलिए जो उनकी जो एक जो वैल्यूज़ थे उनके ट्राइब्स के, या वो सारे वैल्यूज़ अपने पर्सनल डिज़ायर्स के सामने ख़त्म हो जाते हैं. जब मुराद उससे कहता है कि तुम्हें कम से कम 1 साल लगेगा इसको सीखने के लिए, तो वो कहता है कि 1 साल तो कोई बात नहीं, हम घोड़े को 1 साल तक अपने पास रख लेंगे. लेकिन उसके बाद के जवाब में जो उसका कज़न मुराद है वो कहता है कि ग्रोग्लेनियन फैमिली जो है उसने आज तक कभी चोरी नहीं की, तो तुम क्या ये चाहते हो कि उसका एक मेंबर चोरी करे? घोड़ा जिसका है उसके ओनर के पास जाना चाहिए. कब? तो जवाब मिलता है 6 महीने कम से कम. यानी कि साल भर और 6 महीने में कोई ज़्यादा अंतर तो होता नहीं है. लेकिन आप ये चीज़ देख सकते हैं कि मुराद जो है वो कहीं ना कहीं he was trying to grind his own eggs, but he was constantly denying Aram because he does not want to take any unnecessary risk due to Aram's desires. क्योंकि वो ऐसा इसलिए करता है कि उसको हॉर्स राइडिंग बहुत हद तक आ गई है, तो वो अपने आप को परफेक्ट करना चाहता है, और घोड़े की जो चीज़ें होती हैं जुड़ी हुई घोड़े से, वो उन चीज़ों को समझता है, उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है. लेकिन एज फार एज आराम इज कंसर्न, ही इज नाइव इन दिस मैटर. He threw the bird into the air. The bird tried hard, almost fell twice, but at last flew away high and straight. उसने पक्षी को आकाश में फेंक दिया, यानी कि ऊपर हवा में फेंक दिया, और उस पक्षी ने बहुत हार्ड तरीके से ट्राई किया. 2 बार लगभग वो गिर ही गया था, लेकिन लास्ट में क्या उड़ करके वो चला गया. Early every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it. And every morning, the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over grapevines and small trees and threw me and ran away. Nevertheless, I hoped in time to learn to ride the way my cousin Murad rode. अब दोनों जो भाई थे, दोनों भाइयों ने ये रूटीन रोज का बना लिया था कि सुबह सुबह घोड़े को निकालना है और उसकी राइड लेनी है. तो 2 हफ्ते तक जो उसका कज़न मुराद और ये आराम था, इन्होंने हॉर्स को उस बार्न से निकाला जो डेजर्टेड वाइनयार्ड में था, जहाँ वो घोड़े को रखते थे और उसकी सवारी करते थे. हर एक सुबह जब भी वो लोग राइड करने के लिए जाते थे, तो घोड़ा जो था वो जब भी आराम का टर्न आता था, वो जो ग्रेप वाइन्स थी उनके ऊपर से कूदकर भाग जाता था. छोटे पेड़ और जो दूसरी चीज़ें थी वहाँ वो चला जाता था, और आराम गिर जाता था घोड़े से. लेकिन इन सब चीज़ के बावजूद आराम को इस चीज़ का विश्वास था कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब वो अपने कज़न मुराद की तरह हॉर्स राइडिंग सीख जाएगा. One morning on the way to Fatvizian's deserted vineyard, we ran into the farmer John Vairo, who was on his way to town. तो एक सुबह क्या होता है कि वो फेटविजियन, यानी कि जिस डेजर्टेड वाइनयार्ड जहाँ वो अपना घोड़ा रखते थे, उस फार्मर का जिसका नाम था फेटविजियन, जब वो वहाँ जा रहे थे तो जॉन वायरो जो फार्मर था वो उससे आकर के मिले, जो कि टाउन जा रहा था, रास्ते में था वो भी.
Let me do the talking, my cousin Murad said. I have a way with farmers. Good morning, John Byro, my cousin Murad said to the farmer. तो मुराद ने कहा कि मुझे उससे बात करने दो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इन किसानों से कैसे बात करनी है। तो जॉन बायरो के साथ उसने एक फॉर्मल कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की गुड मॉर्निंग बोलकर। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली। घोड़े को देखने के बाद उसको थोड़ा सा डाउट हुआ, तो उसने बड़ी उत्सुकता से घोड़े को देखा। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, व्हाट्स द नेम ऑफ योर हॉर्स। तो जॉन बायरो ने भी इनको रिटर्न में गुड मॉर्निंग कहा कि मेरे दोस्तों के बेटो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और घोड़े का क्या नाम है? माई हार्ट, माई कजन मुराद सेड इन अर्मेनियन। A lovely name, John Byro said, for a lovely horse. I could swear it is the horse that was stolen from me many weeks ago. May I took into his mouth? अब वो कहता है कि मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि ये वही घोड़ा है जो मेरे यहाँ से कुछ हफ्तों पहले कई हफ्तों पहले यहाँ से चुरा लिया गया था। क्या मैं घोड़े के मुंह में देख सकता हूँ? एक्चुअली में क्या है कि दिस इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस टू आइडेंटिफाई द हॉर्स, कि घोड़े के जो दांत हैं, घोड़े का जो मुंह है, उसको देख करके घोड़े का ओनर ये पता लगा लेता है कि ये उसका घोड़ा है या नहीं है। इट्स अ कॉमन प्रैक्टिस अमंग द हॉर्स कीपर्स। ऑफ कोर्स, मुराद ने कहा, द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स। Tooth for tooth, I would swear it is my horse. If I didn't know your parents, the fame of your family for honesty is well known to me. Yet the horse is the twin of my horse. A suspicious man would believe his eyes instead of his heart. Good day, my young friends. हर एक चीज़ वैसी की वैसी, यानी कि दांत और जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, सारी चीज़ बिल्कुल मेरे घोड़े जैसी है। और मैं कसम खाकर ये चीज़ कह सकता हूँ कि अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता तो तुम्हारी फैमिली, जो कि ऑनेस्टी के लिए मशहूर है और मुझे भी उसके बारे में पता है, लेकिन फिर भी ये जो हॉर्स है ये मेरे घोड़े का बिल्कुल ट्विन है। और एक जो सस्पिशियस व्यक्ति है वो अपनी आंखों का यकीन करेगा बजाय कि अपने हार्ट के। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स, वो चला जाता है। गुड डे जॉन बायरो, माई कजन मुराद सेड। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरो's vineyard and put it in the barn. The dogs followed us around without making a sound. The dogs, I whispered to my cousin Murad, I thought they would bark. They would at somebody else. He said, I have a way with dogs. अब देखें कि अगली सुबह वो लोग क्या करते हैं कि जॉन बायरो का जो घोड़ा था वापस उसको उसी जगह पर बांध करके आ जाते हैं जहाँ से उसने उसको चुराया गया था। तो जो फार्म के जो कुत्ते हैं उनके पीछे पीछे जाते हैं, लेकिन वो कोई साउंड नहीं करते, भौंकते नहीं हैं उन पर। तो मैं उससे पूछता हूँ, मैंने उससे कहा, अरे कुत्ते हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं, ये भौंकेंगे तो नहीं? तो मुराद उसका जवाब देता है कि वो हमारे पे नहीं, किसी और भोगेंगे, मुझे कुत्तों से निपटना आता है। माई कजन मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, प्रेस्ड हिज नोज इनटू द हॉर्सेस नोज, पैटेड इट एंड देन वी वेंट अवे। अब घोड़े को बांध देने के बाद में मेरा जो कज़न मुराद था उसने घोड़े के साथ में जो एक अफेक्शन था, यानी कि उसको फील, मतलब उसको टच करना और उसके साथ में अपना सर भिड़ा देना, तो ये सारे जेस्चर्स उसने किए। उसके बाद हम लोग वापस चले गए। एंड दैट आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू आवर हाउस इन हिज सरे एंड शोड माई मदर द हॉर्स दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न। अब उसी आफ्टरनून जो जॉन बायरो था वो हमारे घर पे आया आफ्टरनून में, और उसने बग्गी में, और उसने अपना जो घोड़ा चोरी हो गया था, चूँकि उसको वापस मिल गया था, तो उसको दिखाने के लिए वो हमारे घर पर वापस आया था। आई डोंट नो व्हाट टू थिंक, समझ में यहाँ से क्या सोचूं इस बारे में। द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एवर, बेटर टेम्पर टू। आई थैंक गॉड माई अंकल Khosrow, who was in the parlor, became irritated and shouted, Quiet,
मैन क्वाइट, योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, पे नो अटेंशन टू इट। अब देखिए जैसे उसका घोड़ा वापस आ जाता है तो वो जैसा उसके मन में रहता है तो वो कहता है कि यार मैं समझ नहीं पा रहा कि इसके बारे में क्या कहूँ, क्योंकि घोड़ा पहले से ज़्यादा टेम्पर्ड हो गया है, यानी कि पहले से ज़्यादा डिसिप्लिन हो गया है और पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया है। अब थैंक गॉड ये उसका जो अंकल खोसरो होता जो कि वहाँ पार्लर में बैठा हुआ था, वो अंदर से चिल्लाता है कि भाई चुप हो जा, चुप हो जा, अब तेरा घोड़ा वापस आ गया है, अब पे नो टेंशन टू इट, अब इस पर कोई ध्यान मत दे। सो दिस इज़ द end of the chapter, and I hope you have enjoyed the story, and I'll be meeting with you in our next video with next chapter. Till then, thank you very much.